Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation, and in this video we are going to solve PYQ of NORCET. So basically we will solve the OBG PYQ, very important topic. It is something like OBG is something the very important subjects, like the highest weightage in the NORCET is from the OBG. Okay, so you can't miss the OBG subjects. So coming to the first question, that is a 29-year-old woman delivered a baby vaginally on the first postpartum day. Okay, the nurse finds that the fundus of the uterus located laterally to the umbilicus. This finding is most likely due to A. Endometritis, B. Fibroid tumor of the uterus, C. Displacement of the uterus due to bowel distension, and the D. The urinary retention or a distended bladder. So you know very well. So after delivery of the baby and the placenta, the fundus should be located at the umbilicus level or just above the umbilicus level. Okay, and it should be in the middle line. Okay, so uterus and the fundus should be in the middle line and just above the umbilicus or at the level of umbilicus. So that's the normal position. Okay, and like every day, like 1 centimeter per day, the fundus is going to descend. Okay, so at the time of delivery, है ना? So at the time of, or you can say after delivery of the placenta. So after delivery of placenta, the uterus is located at the umbilicus or just above the umbilicus and at the midline, and the shape is around the cricket ball के type का shape होता है, and weight is around 1000 ग्राम. ठीक है, एंड डेली 1 सेंटीमीटर पर डे डेली डिसेंड होता रहता है. सो अराउंड 1 वीक यू कैन से यूट्रस कहाँ पे आ जाता है? इन बिटवीन द अम्बिलिकस एंड प्यूबिस सिम्फाइसिस. सो प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड बिटवीन द अम्बिलिकस के बीच में यूट्रस फंडस आ जाता है. एंड बाय 2 वीक यूट्रस इज नॉट पैल्पेबल, है ना? नॉट पैल्पेबल, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो वेट होता है डेट इज अराउंड 300 ग्राम, और एट 1 वीक पे जो वेट होता है डेट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम हो जाता है. एंड बाय 3 to 4 वीक क्या होता है? यूट्रस कंप्लीटली इन्वोल्यूशन हो जाता है. सो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कंप्लीट बाय 4 वीक. So that's basically normally होता है. So after delivery of the baby and the placenta, uterus should be at the level of umbilicus. Weight is around 1000 gram and it should be contracted, well contracted. ठीक है, and it should be in the midline. बट अगर लेट्स सपोज दे आर सेइंग कि यूट्रस जो फंडस है वो कहाँ पे है? लेटरली टू द अम्बिलिकस. सो इट इज लेटरली टू द अम्बिलिकस. सो दिस फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू एंडोमेट्राइटिस. सो यू नो वेरी वेल एंडोमेट्राइटिस क्या होता है? एंडोमेट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन की वजह से. सो अगर इन्फेक्शन की वजह से एंडोमेट्रियम में स्वेलिंग होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, सो इट इज नॉट ओनली कि आपको इसमें आपको जो फंडस है वो लिटरली होगा. इसमें बेसिकली मदर को क्या होगा? मदर हैविंग फीवर, टेकिकार्डिया, फॉल स्मेलिंग, लोकिया, मतलब जो डिस्चार्ज होगा डेट इज फॉल स्मेलिंग होगा, प्लस यूट्रस जो है वो टेंडर होगा, है ना? इसमें यूट्रस लिटरली लोकेटेड इज नॉट ओनली द सिम्टम्स. ओके, सो इट इज रॉन्ग. Coming to the B, that is the fibroid tumor of the uterus. Yes, so in the fibroid tumor of uterus, it may be कि जो फंडस है वो लेटरली होगा, बट इट इज नॉट एट द फर्स्ट पोस्टपार्टम डे. इट इज नथिंग एट सडन होगा. इट इज समथिंग कि धीरे धीरे होगा, स्लोली प्रोग्रेसिव होगा ना. सो फाइब्रोइड ट्यूमर ऑफ द यूट्रस, सो फर्स्ट पोस्टपार्टम डे के दिन नहीं होगा. सो इट इज अगेन रॉन्ग. सी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस ड्यू टू बॉवल डिस्टेंशन. सो बिकॉज ऑफ द बॉवल डिस्टेंशन मदर इज नॉट एबल टू पास, लाइक मदर नॉट पास stool, and because of that bowel distension होगा, and because of the bowel distension uterus is not laterally displaced. uterus laterally displaced नहीं होगा, mother को discomfort होगा but uterus laterally displaced नहीं होगा. And D is saying urinary retention or distended bladder, and this is the basically reason. So you know very well कि जब baby होता है, so after delivery of the baby we have to tell the mother you should void within at least 4 hours. within 4 hours में mother को यूरिन पास करना है. अगर लेट्स सपोज मदर अगर विद इन 4 आवर्स में यूरिन पास नहीं करती है, देन हमें क्या करना है? वी हैव टू डू अल्ट्रासोनोग्राफी टू चेक, है ना? बिकॉज अगर मदर वॉइड नहीं करेगी, ब्लैडर फुल होगा, ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा, यूरिन रिटेंशन रहेगा, तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्रस जो है वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, एंड अगर यूट्रस प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा इट कैन लीड टू पीपीएच.
postpartum hemorrhage, and also it can lead to laterally the uterus is displaced laterally, है ना. So this is the main reason of the laterally displacement of the fundus of the uterus. So the answer is D is the correct answer, that is the urinary retention or distended bladder, and because of that जो fundus है वो laterally है and also it is not contracting. Okay, so D is the correct answer, very simple. Moving to the next question, that is a client is admitted to the labor unit on vaginal examination. The presenting part in a cephalic presentation was at station +1. Okay, station +1 means that the presenting part is 1 centimeter above the level of ischial spine. So, you know हमारा 0 at ischial spine होता है ना. सो प्रेजेंटिंग पार्ट बेसिकली हम एट ischial स्पाइन से देखते हैं. सो इफ द स्टेशन इज 0 इट मींस कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कहाँ पे है, एट ischial स्पाइन. इफ इट इज -1 -2 -3 -4 -3 -4 -5 ऐसे होगा, इट मींस माइनस होगा तो मतलब कि 1 सेंटीमीटर अबव. The presenting part is 1 centimeter above. If it is +1 +2 +3 station, it means the presenting part is 1 centimeter below the ischial spine. ठीक है, सिंपली. सो दे आर सेइंग कि एट स्टेशन +1, स्टेशन +1 का मतलब क्या है कि द प्रेजेंटिंग पार्ट इज 1 सेंटीमीटर बिलो द ischial spine. सो कहाँ है, ए है प्रेजेंटिंग पार्ट इज 1 सेंटीमीटर अबव, नो इट इज -1. बी बाईप्राइटल डायमीटर इज द लेवल ऑफ द ischial spine. हम बाईप्राइटल डायमीटर से चेक नहीं करते, हम प्रेजेंटिंग पार्ट बेसिकली देखते हैं. सी प्रेजेंटिंग पार्ट इज 1 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ स्पाइन, ischial spine. यस, इट इज द करेक्ट वन. डी है बाईप्राइटल डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर अबव the ischial spine. It is again wrong. Then the correct answer is C. Very simple type of questions. ठीक है. Moving to the next question, that is a nurse is monitoring the heart rate of fetal heart rate of a client who has ruptured membranes. Very important. The nurse notices severe variable deceleration on the monitor. What is the most likely cause of the finding? A fetal head compression. You know fetal head compression में कौन सा आता है deceleration? That is the early deceleration होता है ना. And uteroplacental insufficiency में कौन सा deceleration होता है? Late deceleration होता है. And umbilical cord compression में कौन सा deceleration होता है? Variable deceleration होता है. And D is वो तो है ही नहीं, वो तो exclude हो गया, है ना. एंड दे आर सेइंग कि जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर्ड हो गया है एंड द नर्स नोटिसेस अ सीवियर वेरिएबल डिसलेशन. तो सीवियर वेरिएबल डिसलेशन अकर इन अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन एंड इन द क्वेश्चन वन हिंट आल्सो गिवन, दैट इज द रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स. यू नो वेरी वेल कि अगर मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाएगा, अगर अम्नियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर्ड होता है सो यहाँ पे एक स्पेस हो जाएगा एंड उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, अम्बिलिकल कोड आके ऑक्यूपाई कर लेगा. सो रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स का जो मोस्ट कॉमनली जो रिस्क फैक्टर होता है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है, दैट इज द अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर कोड प्रोलैप्स, है ना. सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर. अगर उन्होंने रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स नहीं भी बोला होता तब भी हमें पता चल जाएगा वेरिएबल डिसलेशन सीन इन अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन, बट उन्होंने रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स बोल दिया. सो इट लाइक डायरेक्टली सिग्निफाई कि देयर इज अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन या फिर अम्बिलिकल कोड प्रोलैप्स एंड इट लीड्स टू वेरिएबल डिसलेशन. ओके, ठीक है, fine. Moving to the next question, that is a woman normally vaginally delivered a baby present with excessive vaginal bleeding 2 weeks after delivery. Okay, so excessive vaginal bleeding कब है, 2 weeks after delivery. What is the most likely cause? A uterine atony, cervical tear, retained product of conception, postpartum coagulation disorder. You know very well we have primary PPH है एंड सेकेंडरी PPH. प्राइमरी PPH मीन्स विद इन 24 आवर्स में अगर ब्लीडिंग होगा, दैट इज नोन एज प्राइमरी PPH. सेकेंडरी PPH मीन्स द ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स टू 12 वीक. सो विद इन 12 वीक आफ्टर 24 आवर्स के बीच में अगर ब्लीडिंग होगा, दैट इज द सेकेंडरी PPH. सो यू नो वेरी वेल द प्राइमरी PPH मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, दैट इज यूटेराइन एटोनी, है ना, यूटेराइन एटोनी, एटोनिक यूटेरस. बट सेकेंडरी PPH का जो मोस्ट कॉमन कॉज है, दैट इज द रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस और रिटेन प्रोडक्ट ऑफ प्लेसेंटा एंड ऑल. ठीक है ना. सो दे आर सेइंग कि 2 वीक आफ्टर डिलीवरी, इट मींस इट इज अ सेकेंडरी PPH. एंड सेकेंडरी PPH का मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा, ए यूटेराइन एटोनी, नो, यूटेराइन एटोनी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ primary PPH. Cervical tear, it is again the cause of
प्राइमरी पीपीएच, क्योंकि प्राइमरी पीपीएच में बेसिकली अगर सर्वाइकल टीयर होगा तो 2 हफ्ते के बाद तो ना ब्लीडिंग होगा, उसी टाइम ब्लीडिंग होगा, ऑन द स्पॉट ब्लीडिंग होगा, है ना. सो इट इज अगेन रॉन्ग. एंड सी इज retained product of conception and D is postpartum coagulation disorder. So C and D both are the cause of secondary PPH, but the most common जो हम बोलते हैं most common is the retained product of conception. So then the answer is C is the correct answer. Very simple. ठीक है. Moving to the next question, that is a pregnant woman in the second trimester is advised not to lie in the supine position. Okay, what is the main reason for this advice? A, risk of hypoglycemia, supine hypotension syndrome due to vena cava compression. C, increased fetal movement, and D is the risk of infection. So you know very well कि इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में इफ मदर लाई सुपाइन, अगर मदर सुपाइन लाई करेगी तो क्या प्रॉब्लम होगा? यू नो वेरी वेल कि जो इंफीरियर वना कवा है वो कंप्रेस होगा, एंड बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द इंफीरियर वना कवा क्या होगा कि जो वीनस रिटर्न है वो क्या हो जाएगा? वीनस रिटर्न रिड्यूस हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द रिड्यूस ऑफ वीनस रिटर्न क्या होगा? मदर को क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा, है ना. सो what is the main reason for this advice? Risk of hypoglycemia, no. Supine hypotension syndrome due to vena cava compression, yes, this is the main reason. Increased fetal movement, D, risk of infection, ये सारे गलत है. आंसर क्या है? B is the correct answer. So that's why हम मदर को क्या एजुकेट करते हैं कि आपको बेसिकली लेटरल पोजीशन में आपको लाई डाउन करना है. सो लेटरल पोजीशन एंड most important is left lateral position. Okay, so this is very very important. Moving to the next question, that is in which of the following image the procedure should be done at 6 to 12 weeks, 16 to 18 week, 20 to 22 week, and 12 to 14 weeks. So you know very well this is the image of bimanual examination. Bimanual examination of the uterus, है ना, of the pelvic organ. So you know bimanual examination basically हम like normally जब pelvic examination होता है तो करते हैं if any procedure for uterus तो उसमें भी करते हैं, but most commonly जब हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हैं, सो बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव क्या होता है बाईमैनुअल एग्जामिनेशन का कि यूटरस का वी हैव टू फाइंड द यूटरस पोजीशन. यूटरस पोजीशन क्या है, उसका क्या बोलते हैं साइज क्या है. सो साइज, पोजीशन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाईमैनुअल एग्जामिनेशन. इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि वन हैंड जो है वो एब्डोमिनली होगा एंड वन हैंड जो है फिंगर जो हम वजाइनली इंसर्ट करेंगे, एंड देन वी आर चेकिंग द यूट्रस साइज, पोजीशन, कंसिस्टेंसी एंड ऑल, एंड दिस इज बेसिकली डन लाइक बिफोर 12 वीक, बिफोर 12 वीक, बिफोर 12 वीक, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक. सो आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर. 6 to 12 वीक के अराउंड करेंगे. ठीक है. Okay, moving to the next question, that is a preterm report shows fetal movement and the NST test is non-reactive. What is the next appropriate intervention? And I can say this is the question that is something very 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 important, है ना. So ये non-reactive, reactive, NST, CTG, deceleration, acceleration, ये सब क्या होता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए. So they are saying कि preterm shows fetal movement that is decreasing kind of, ये गलत वर्ड यहाँ पे आया हुआ है ना, shows fetal movement and the NST test is non-reactive. बेसिकली आपको इस लाइन पे ज्यादा ध्यान देना है. NST test is non-reactive. What is the next appropriate intervention? So I have told you during my lecture that is modified BPV, है ना. So modified biophysical profile में बेसिकली हम क्या करते हैं? NST करते हैं प्लस amniotic फ्लूइड इंडेक्स चेक करते हैं. NST क्या बताता है? एक्यूट डिस्ट्रेस ऑफ न्यूबॉर्न फीटस का बताता है, एंड इट टेल्स अबाउट द क्रोनिक डिस्ट्रेस. ठीक है. एंड इफ एनी ऑफ द एनी वन पैरामीटर, एनी like in both these, if any one parameter is abnormal, then next step हमारा क्या होता है? कंप्लीट BPP करना है ना. जो होल BPP है जिसमें पूरा 5 पैरामीटर्स है वो हमें करना है ना. सो कंप्लीट बायोफिजिकल प्रोफाइल करना है. ठीक है. या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट भी कर सकते हो, बट यूजुअली हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में हमें क्या करना होता है? बेसिकली हमें यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, एंड वी हैव टू चेक कि लाइक जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है देन फीटस का हार्ट रेट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना. सो बेसिकली वी आर चेकिंग दैट. सो यूजुअली
वी आर नॉट डूइंग दैट प्रोसीजर, क्योंकि बाय गिविंग ऑक्सीटोसिन यूट्रस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस देयर इज हाई चांस की प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है, ठीक है ना। एंड ऑलरेडी मदर क्या है, प्रीटर्म है, सो प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कंप्लीट बीपी करते हैं। सो मॉडिफाइड बीपीपी इज द इट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ये हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट है। सो कंप्लीट बीपीपी के अकॉर्डिंग हम लाइक डिसाइड करते हैं कि वेदर वी हैव टू डू इमीडिएटली LSCS और इंडक्शन ऑफ लेबर, और जो भी है वो हमें डिसाइड करना होता है। सो दे आर सेइंग कि जो NST है वो नॉन रिएक्टिव है। सो NST जो है वो नॉन रिएक्टिव है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन? ए, रिपीट NST आफ्टर 24 आवर्स। बिल्कुल गलत, बिकॉज NST नॉन रिएक्टिव है, सो देयर इज की फीटल जो है वो डिस्ट्रेस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, फीटल की डेथ हो सकती है, तो आप 24 आवर्स के लिए वेट नहीं कर सकते हो। सो ये हमारा रॉन्ग हो गया। बी है इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन। तो यस, ये हो सकता है, बट इट इज नॉट द लाइक जस्ट आफ्टर की अगर NST नॉन रिएक्टिव आया तो इसके जस्ट आफ्टर आप लाइक LSCS नहीं कर सकते हो। आपको पहले BPP करना है, कॉज को फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हमें करना है। सो इट इज नॉट द इमीडिएट और नेक्स्ट स्टेप, तो ये भी हमारा गलत है। सी है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट विथ ऑक्सीटोसिन एंड डी इज द डिस्चार्ज द पेशेंट। सो डिस्चार्ज द पेशेंट एंड रिपीट NST आफ्टर 24 आवर्स, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए, एक्सक्लूड हो गए। कमिंग टू द सी, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट विथ ऑक्सीटोसिन, तो ये हम कर सकते हैं, बट यूजुअली हम ये नहीं करते हैं, उसकी जगह हम क्या करते हैं, कंप्लीट BPP। तो अगर आपके ऑप्शन में BPP का ऑप्शन होता कि बायोफिजिकल प्रोफाइल, तो वो हमारा ज्यादा करेक्ट आंसर होता, ठीक है, बट BPP नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या है, दैट इज सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अंडरस्टूड। Moving to the next question, that is Radha, a 15-year-old visited gynecological OPD with complaints of primary amenorrhea. Okay, an examination revealed an imperforate hymen. The probable diagnosis is, देखो दे आर सेइंग कि प्राइमरी अमीनोरिया है, मतलब कि उसको मेंसेस नहीं आए हैं कभी भी। सो जब एग्जामिनेशन करते हैं तो इम्परफोरेट हाइमेन है, ठीक है। सो द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज क्रिप्टोमिनोरिया, डिस्मिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया और पॉलीमिनोरिया। सो देखो क्रिप्टोमिनोरिया, देखो इम्परफोरेट हाइमेन क्या होता है बेसिकली कि जो वजाइना जो ओपनिंग है वो क्या है, क्लोज्ड, वजाइनल ओपनिंग क्लोज्ड है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, जो भी हार्मोनल है, जो भी ऊपर को जितने भी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो सारा कुछ नॉर्मल हो रहा है, बट द फ्लो इज फ्रॉम द वजाइना, सो वहां पे क्लोज है, वो जो ओपनिंग है वो क्लोज्ड है, एंड बिकॉज ऑफ द क्लोज्ड ओपनिंग जो ब्लड है वो बाहर नहीं आ पा रही है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज नॉर्मल, ओनली द प्रॉब्लम इज एट द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द इम्परफोरेट हाइमेन, एंड इम्परफोरेट हाइमेन इज बेसिकली कहाँ होता है, क्रिप्टोमिनेरिया में होता है। सो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ट्रैक्ट that is basically occur in cryptomenorrhea, and this cryptomenorrhea is basically due to imperforate hymen भी हो सकता है, या फिर vaginal agenesis भी हो सकता है, और फिर transvaginal septum भी हो सकता है। In all that condition में basically क्या है कि everything is normal, the hypothalamus, the pituitary, the ovary, everything is normal, everything is occurring normal। तो basically problem कहाँ पे है, outflow tract में problem है, there is obstruction in the outflow tract and that is known as cryptomenorrhea, and this cryptomenorrhea is due to imperforate hymen भी हो सकता है, वजाइनल एजेनेसिस भी हो सकता है, ट्रांसवजाइनल सेप्टम भी हो सकता है। सो द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज क्रिप्टोमेनोरिया। यू नो वेरी वेल डिस्मेनोरिया इज लाइक पेनफुल होता है, दैट इज बिल्कुल डिफरेंट हो गया। आप अगर आपको पता भी नहीं, स्टिल आप ये आंसर मार्क कर सकते हो। ओलिगोमेनोरिया इज लाइक लेस देन 9 साइकिल इन ईयर, सो ये भी गलत हो गया। एंड पॉलीमेनोरिया इज लाइक वेरी वेरी फ्रीक्वेंट साइकिल, सो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो I hope you understand these all the questions very well and you get an idea also कि किस तरीके से MCQ बेसिकली हमारे नॉसेट में आता है। सो प्लीज बी फोकस्ड। अब लास्ट टाइम पे आपको कुछ और न्यू ऐड नहीं करना है, जस्ट रिवाइज वट एवर यू हैव स्टडीड, practice MCQ and PYQ, very very important, and analyze your mistakes and fix it। सो ये बेसिकली 4 चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है nowadays। फॉर MCQ प्रैक्टिस आपको मॉसबी से थोड़ा MCQ कर लो, एंड फॉर PYQ यू नो वेरी वेल, यू कैन टेक मिशन ओल्ड पेपर बुक, या फिर अगर आपको बुक नहीं लेना तो आप
डायरेक्टली साइट्स पे भी जाके आप लाइक पीडीएफ से PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो. दैट इज द मिशन हाई नर्सिंग के साइट से. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द टॉपिक वेरी वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.